नमस्कार। एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ इस कोविड-19 लॉकडाउन में। मुझे उम्मीद है पहले वाले जो भी 3 या 4 एपिसोड आपके साथ मैंने शेयर किए हैं आपको अच्छे लगे होंगे। हमारे आज ख़ास तौर पे 2 या 3 चीज़ों पे ही ज़्यादा ध्यान रखूँगा। एक तो हमारे टीचर्स जो ये लॉकडाउन में काम कर रहे हैं, उनकी मैं जितनी भी प्रशंसा कर सकूँ वो कम है। मुझे उम्मीद है आप लोग भी उसे पसंद करेंगे। आई थिंक द वे माई टीचर्स आर वर्किंग ड्यूरिंग दिस लॉकडाउन एंड providing the information and other topics like life skills and like Namaste Teachers, that program of 5 episodes must have been motivating, and it must have motivated the students as well as the parents also. But one thing is very certain, that this teaching through virtual teaching, now you must have been realized, is not the ultimate teaching. Actual teaching is actual teaching. The teachers are missing the students, students are missing the teachers. So whenever I happen to talk to a student or a teacher, the same thing is happening. The teachers are missing the students because they are missing that kind of a thing that she or he is teaching English and you are doing physics class, or he or she is teaching physics and you are busy with the other activity, ting, or pulling this neck of your friend. All these things are really missing in the class. So that kind of a thing which was happening or which happened in the class is missing, and we badly miss it. So that is a thing, that is the charm, and that is the emotional kind of a thing which is missing. And you must have realized now that you cannot replace the teacher whatsoever may be the condition of the teacher. My salute to the teacher. Everybody have saluted doctors, nurses, police walas, and all the corona warriors. But we have forgotten these warriors who are fighting at the education front, though they are sitting at home, but still they are devoting a lot of time. We are not expert in this virtual kind of teaching. Everyone is not having the same type of the talent. But in spite of that, they are trying and they are contacting with you and trying to pass on the information. So my salute to the teachers. I hope, children, you should also pray for these teachers and convey your good wishes to these teachers, as the nation has burnt a candle or a diya and thali and something for all the corona warriors, though they deserve a salute, they also, but my teachers also deserve a salute from you. So I wish that on Monday, this coming Monday, that is on 18, if you have a contact number of your teachers, please pass on a thank you word, a thank you kind of a sentiment to your teachers. That will be a nice gesture from all of us on Monday at 10 a.m. This is the first thing. Now in this corona, still means we are not sure what will be the final outcome of this lockdown on Monday. It may take some more days. Once the school will reopen, then we have to design different strategies also. We may not see you all together in one go. We have to design a timetable where we can call you one by one in small groups and for limited period that is going on in my mind once the school is reopened. But take my words, we are here to help you, so don't worry, don't be stressed as far as your academic part is concerned. Be hopeful. We all should be hopeful. We should never be. Now on this hope, I am reminded of one story.
That story I'll tell you, but before that, I dare to scribble certain thing. कुछ लाइनें मैंने एक कविता के रूप में लिखी हैं. उस कहानी से पहले मैं आपसे ये लाइनें शेयर करना चाहूँगा. मुझे उम्मीद है आपको पसंद आएगी. हम सबको मिलकर कोरोना को हराना है. समय कठिन है, रास्ता विकट है, फिर भी है विश्वास. हम जीतेंगे जरूर जब तक तन में है श्वास. देश के कोरोना वॉरियर्स को करते हैं हम सलाम. पुलिस, डॉक्टर, नर्स रात और दिन कर रहे हैं काम. मीडिया ने भी इसमें दिया है योगदान. इन सब का प्रयास व्यर्थ नहीं जाएगा. इनका विश्वास और हौसला कोरोना को जरूर हराएगा. कहीं कहीं इंसानियत शर्मसार भी हुई. कहीं योद्धाओं को भी पड़ी मार, तो कहीं मरीज हुए फरार. फिर भी हमने हिम्मत नहीं हारी है. हमारी कोरोना से जंग जारी है. माना अभी मंजिल है दूर, पर मत होने देना हौसला अपना चकनाचूर. कुछ दिन की अंधेरी रात से नहीं हमको घबराना है, क्योंकि आने वाला समय बहुत ही सुहाना है. साथी मत घबराना, एक दिन हमको जरूर है हराना. किसको? कोरोना को. धन्यवाद. अब मैं आपको कहानी का आनंद लीजिए, और ये जरूर, मुझे उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर प्रेरणा देगी. धन्यवाद. एक बार एक महात्मा एक बहुत बड़ा सा संदूक लेके कहीं जा रहे थे, और वो किसी गांव में से गुजरे. उस गांव में से जब वो गुजर रहे थे तो उन्होंने ये नोट किया कि गांव बहुत ही समृद्ध था, खुशहाल था. सब लोग बहुत खुश थे. घरों में कोई दरवाजे नहीं थे, सब खुले थे. कहीं कोई रोक टोक नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कुछ नहीं था. तो बाबा कुछ थके हुए थे, तो उन्होंने एक घर के सामने एक बुजुर्ग को बैठे हुए देखा. तो उन्होंने बोला, बाबा क्या मैं ये अपना संदूक या बॉक्स जो है ये कुछ दिन के लिए आपके यहाँ रख सकता हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा सा और आगे जाना है और मैं अब इसका बोझ उठा नहीं पा रहा हूँ. अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं इसको यहीं छोड़ दूँ. तो उस बुजुर्ग ने बोला, हाँ आप इसको यहाँ छोड़ दीजिए, यहाँ कोई चिंता नहीं है, यहाँ कोई भय नहीं है. आप जितने दिन बाद भी आएंगे आप इसको वैसा ही पाएंगे. क्योंकि उस महात्मा ने उनको, उस बुजुर्ग व्यक्ति को एक सावधानी के रूप में एक बोला, लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इस बॉक्स को आप खोलिएगा नहीं. किसी भी हालत में, किसी भी सूरत में इस बॉक्स को आप खोलेंगे नहीं. उन्होंने बोला, नहीं ठीक है, हमारे यहाँ इस तरह का कोई काम भी नहीं होता इस गांव में. आप जिस स्थिति में इसको रखेंगे वैसी ही स्थिति में आप इसको पाएंगे. तो आश्वस्त होकर वो महात्मा वहां से चले गए. ये सब बातें जो हैं वो इन वृद्ध जो व्यक्ति थे, इनका पोता भी सुन रहा था, ग्रैंडसन. तो उनके मन में, जैसा बच्चों के मन में होता है कि जब किसी चीज़ के लिए मना करो तो क्यूरियोसिटी बढ़ जाती है, तो उसके भी मन में ये क्यूरियोसिटी हो गई कि आखिरकार ऐसा इस बॉक्स में क्या है जिसके लिए इन महात्मा ने इसको खोलने से मना किया है. और वो रोज अपने दादा से बोलता, दादा दादा आप इसको खोल के दिखाइए ना, इसमें क्या है. और दादा उसको रोज मना कर देते, देखिए वो महात्मा बोल के गए हैं, हमें उनका सम्मान करना चाहिए और इसको नहीं खोलना चाहिए. लेकिन उसका कौतूहल जो है, जो क्यूरियोसिटी है, वो ख़त्म नहीं. मन, बच्चे का मन माना नहीं. एक दिन दादा थोड़े किसी कामवश कहीं बाहर निकल गए और उसको मौका मिल गया, तो उसने उस बॉक्स को खोल दिया. जैसे ही उसने उस बॉक्स को खोला, उसमें से विभिन्न तरह के कीड़े निकले. और ये कीड़े क्या थे? ये कीड़े थे ईर्ष्या के, एनवियस के, जेलेसी के, क्रिमिनल मेंटलिटी के, टोटल नेगेटिविटी
के कीड़े थे और पूरे गांव में देखते ही देखते एक नेगेटिव एनवायरनमेंट फैल गया। लोग आपस में एक दूसरे की बुराइयां करने लग गए, झगड़े करने लग गए, आपस में उनका जो है एनिमिटी बढ़ गई। बड़ा बुरा हाल हो गया उस गांव का। करीब 30-35 दिन के बाद वो सज्जन जो है, महात्मा जो है, वो वापस आए तो गांव के बाहर से ही उनको पता लग गया, देखते ही कि कुछ तो गड़बड़ हो गया है। और उनका अंदाज़ा सही निकला। जब वो वहाँ वृद्ध उसके घर में आए तो वो बॉक्स खुला हुआ मिला, तो उन्होंने थोड़ी नाराज़गी प्रकट की कि भी मैं जब बोल के गया था आपसे कि इसको मत खोलना, तो आपने क्यों खोला है इसको। वो बोला, साहब क्या करें, ये बच्चे के मन में था और खोल दिया और बहुत गलत हो गया है। तो बोला कोई बात नहीं, एक काम करिए, अभी इस बॉक्स में एक छोटा बॉक्स और है, उसको निकालिए। उस बच्चे को ही बोला। अब बच्चा डरा हुआ और वो उसको खोलने के लिए तैयार नहीं, उठाने के लिए तैयार नहीं। बहुत समझाने पे, बहुत उसको भरोसा देने के बाद बच्चे ने उस बॉक्स को निकाला और अब महात्मा ने बोला इस बॉक्स को खोलिए। तो जैसे ही उस बच्चे ने डरते डरते उस बॉक्स को खोला तो उसमें से बहुत ही ज़बरदस्त एक प्रकाश निकला, जिसने पूरे वातावरण को प्रकाशमय कर दिया, एनलाइटेंड कर दिया। पॉजिटिव एनर्जी का एक एहसास हुआ। पहली बार उन वृद्ध पुरुष को और उन बच्चों को और गांव वालों को लगा कि कुछ तो है। तो वो सब के सब बहुत आश्चर्यचकित हुए, क्योंकि उसमें से एक जो इस टाइम जो एक इंसेक्ट निकला, वो बहुत ही चमकदार, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्रकाश वाला, लाइट वाला था। तो उन्होंने कौतूहलवश फिर पूछा कि ये क्या है। तो महात्मा ने कहा ये होप है, उम्मीद है। ये जब तक उम्मीद रहती है, आशा रहती है, तब तक मन में कुछ करने की भावना रहती है। जो कुछ भी गलत हुआ है, ये उसको कम करने की तरफ एक हमारा कदम है। तो जब कभी भी, चाहे कोरोना हो या कोई भी हो, जब भी कभी विपत्ति आती हैं, डिफिकल्ट टाइम्स विल बी देयर, नेवर लूज द होप। होप विल गिव यू एनर्जी, होप विल एनलाइटन यू, hope will take you from dark to the enlightened space, and that is how we have to go ahead. Thank you. Hope gives a positive mind power. It generates an order around you which protects you from the negatives. This is why hope will always be the essence of life. Hope helps us to ignore the sufferings of the present. Hope is a belief which is unbreakable. When we stay positive about our future and feel that we have to fight to win the problems, our probability to succeed increases. This hope hidden in our subconscious mind is the most powerful force on this earth. So now you understand that the essence of hope is always very sweet. It's an inspiration to live life the best way we can. So make your hope strong. Hope will give you the courage and inspiration to stick to your dream as long as you breathe. If you have a strong aspiration, hope and faith, nothing can bring you down. It lets you aim at the sole purpose of your life. Embarking on Shelley's Ode to the West Wind. O wind, if winter comes, can spring be far behind? O world, if Corona comes, can freedom be far behind? Have faith, there is always light at the end of the tunnel.